Thanks, Aditya. I now request Dr. Ravindra Soni for some beautiful lines or some ghazal. Thank you. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में गीत कर रहे हैं थोड़ा बहुत उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मनोकार चैनल जो इंडिया का कवि सम्मेलन को शूट करने वाला सबसे बड़ा चैनल है, वो भी हमारे बीच में उनका न्यूज। सारे मुझे बदल सारे मुझे बदल होंगे आप घर से गुजर होंगे आप इतनी जो हमसे रूठ गया वो इश्क जो हमसे कोई शहर नहीं कोई महल नहीं अब सच्चा शेर सुनाई क्या एक आग घने तन्हाई थी जो सारे बदन में फैल गई एक आग घने तन्हाई थी
चलता हो दामने दिल को बचाई क्या कोई शहर नहीं कोई महल नहीं अब सच्चा सिर सुनाई क्या Thank you, sir. Dear audience, we have our chairman sir with us, Shri J.C. Jain. I request Professor S.P. Gupta, Director General Coer, to welcome him by presenting him a bouquet. Sir, please. Thank you, sir. I now request Dr. V.K. Singh, Dean Student Welfare, to welcome Director General Coer School of Management, Major General Dr. O.P. Singh. Thank you, sir. Now, if any of our alumni wants to share his experiences or wants to guide our juniors, can kindly come on the podium. Anyone who is interested. Varun. Good afternoon everyone. Myself Varun Deep Singh. I am 2014 batch pass out. First of all, it is a great honor and I am very thankful for the alumni function. My father always said me when I got admission in BTech, he said, "Beta, ये वो 4 साल है तुम्हारी life के, which you will cherish throughout your whole life." So today as I stand here, my father is sitting proud that he always wanted me to be successful. So what I want to share some of my very good experiences. When I joined, V.K. Singh sir was telling some humorous thing about bats. So सर पहले तो यहाँ पे बैग्स लगती थी तो यहाँ बड़ा पर्चा लगता था. अब क्या हो गया कि अब तो यहाँ पे इतने बच्चे रोते थे कि हमारी बैग लग गया. फिर अब तो यहाँ सारे यहाँ के देश में है, यहाँ होता है तो भी पहले हम भी पहले चल गले मिलते हैं. So one was this and I would say I shared many memorable moments. I cannot describe. I'm very much cricket enthusiastic and when I joined उस समय क्रिकेट 2007-11 वर्ल्ड कप था. हम लोगों ने ऑडिटोरियम में देखा इट वाज लाइक वाचिंग अ क्रिकेट मैच इन थिएटर. इट वाज रियली ऑसम. So and I would say finally I would like to thank every teacher that I have met. Some of them are not here. I would like to share a moment like अभी मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में अपना लॉकर क्लोज कर रहा था. So I found a very old copy. एक सीमा सक्सेना मैम हमारे फैकल्टी होती थी तो उन्होंने at that time ma'am she took so much pain to give that notes and still today I have those notes because I still have that एक है कि अभी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होगा तो वो notes are more than sufficient for me. So Coer has been a part of me for so long that even today, even after completing my BTech, I went to Infosys. और उसके बाद मुझे लगा no, I want to be in electronics. So in electronics, तो मैं जॉब छोड़ के आ गया. मतलब it has ROORKEE has been a location close to Dehradun. So I am a Patel citizen. मैंने कहा सर जॉब लगी थी मैं छोड़ के आ गया. Okay. So after that, I had an opportunity. Initially, when I joined, the Coer. So at that time, there is always a desire. Being in ROORKEE, you would see, अरे यार अगर मैं IIT ROORKEE में होता तो वो बहुत अच्छा होता. So I had the privilege that after 1 year I got admission in IIT ROORKEE, and I can say that being an alumni has been associated for you can say last 4 years कि 1 साल से पहले मैं कॉलेज आके एक बार अपने टीचर से मिल जाता हूँ. I would like to thank everybody. Patel sir has been, I will say, the best HOD, best faculty that I have met. I am saying this after I completed my BTech and MTech in MTech because the best part about Patel sir is I have never seen him losing the school. There has
भी इवन मैं अपने प्रोजेक्ट में कूल यूज कर जाऊंगा, लेकिन पटेल सर इज लाइक अरे करो हो जाएगा. दैट इज द थिंग दैट आई वुड ऑलवेज बी. वीके सिंह सर, इनिशियली आई वुड से सर when I came to college I said that sir बहुत strict है, but I've seen that there is, after going to I've seen MNIT Allahabad as well, but there needs to be a bit of strictness that is lacking in government colleges. Because everything is for our good, and but I can say that I have been very proud and I cannot ask anything better. And lastly I would say that my life's biggest achievement is that my father is always there to see me succeed. Okay, thank you so much. Anyone else wants to say something? Shreyansh? Where is Shreyansh? Shanti Patel? Shreyansh? A very good afternoon to all. घर में खुद का परिचय दे दिया नहीं जाता है बिकॉज ऑल ऑफ यू मतलब टीचर्स, आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल फ्रॉम टुडे. मतलब जब से मैं आया हूँ तो टीचर्स आर ट्रीटिंग मी लाइक मतलब उनकी डांट खाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. तो इट विल बी बेटर कि वैसे ही मैं रहूँ, वैसे ही मेरे को टोके ताकि वी कैन ग्रो मोर. दिस कॉलेज लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज मैं भूल नहीं सकता. मतलब द कंट्रीब्यूशन दिस कॉलेज हैज, चाहे वो मतलब आई हैव गॉट मतलब 100% फ्रॉम ईच एंड एवरी. बीके पीछे जहाँ बैठे हैं, आई कांट फॉरगेट रात में 10 बजे तक सर और अंसारी सर अपने ऑफिस में बैठ के मेरे लिए एक लेटर उन्होंने एसएसबी के टाइम पे मेरे को दिया था. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? हाउ कैन आई फॉरगेट इवन एनीबडीज कंट्रीब्यूशन? जितने भी लोग हैं, मतलब एनओसी लेके मेरे को बाहर भेजना, उसके बाद मतलब इट इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी. तो जो भी मतलब इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर और जो इस कॉलेज ने दिया है. अनदर थिंग दैट कॉलेज हैज गिवन मी इज लवली फ्रेंड्स, जो आज भी मतलब आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई मैनेजर इन माई कंपनी. सो उन्होंने बस यही बोला था कि फ्रेंड्स आर नॉट इन द कंपनी, यू विल नॉट फाइंड एनी फ्रेंड इन द कंपनी, दे आर कलीग्स. वंस यू आर आउट ऑफ द जॉब यू आर आउट ऑफ दोज कलीग्स, बट फ्रेंड्स आर दोज जो तुमने आज तक कमा लिया. एंड एक्चुअली आई ऑब्जर्व इन द पास्ट 3 years दैट यस दिस इज क्वाइट ट्रू. एंड जब मैं यहाँ से गया था काफ़ी इमोशनल होकर गया था. तो एक छोटी सी पोएम थी, क्योंकि आज कवि सम्मेलन है. एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज हियर तो हमारा एक ड्रीम था. वीके सिंह सर से मैं बहुत कहता था, आई वाज अगेंस्ट हिम कि सर कवि सम्मेलन कराना है, दैट टू बिकॉज आई वाज ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द लिटरेरी कमिटी, आई वाज ऑर्गेनाइजिंग इट. तो सर कवि सम्मेलन कराना है, कवि सम्मेलन कराना है. सर ने कहा हाँ हो जाएगा, बट इट वॉज नेवर अप टू दैट लेवल. जो आज हो रहा है, that was once my dream when I was a college student. So that is actually very much commendable. For my friends who are not here, and when I went I was very emotional, so I wrote something to them. तो कवि सम्मेलन चूँकि दिल के करीब है इसलिए कुछ लिख दिया था. वो पल हमसे बिछड़ गए, वो साथ हमसे छूट गए. क्या सोचा था जब जिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सब नहीं होगा और सिर्फ यादों के सहारे जीना होगा. यादों में अब जिंदा हैं वो सुबह में रात का शुरू होना, वो ब्रेकफास्ट के लिए दोस्तों का जगाना, वो 5 मिनट में क्लास पहुंचना, वो बंद करके पोहे और चाय पीना, वो धूप में कैंपस में घूमना, सिर्फ एक बार अपनी वाली की झलक देखना, वो मेस की रोटी, वो संडे का फ्राइड राइस, वो शाम का इंतजार ताकि सब बैठ सके यारों के साथ, वो लव लेने के चक्कर, वो चाय का कप, वो दोस्तों की मस्ती, वो लंबी बातें, वो पीएमसी में घंटों का इंतजार, वो पीएमसी में प्यार का इजहार, वो हॉस्टल की मस्ती, वो रात की बालकनी, वो छोटी कैफे की पार्टीज, वो रूम की मस्ती, वो रात का डांस. बस याद ही बनकर रह गया है ये सब. बहुत याद आता है, अब अधूरा सा लगता है ये, इसी आस में कि पूरा होगा, पर जब तक नहीं होता तब तक वो मजे के दिन अब नहीं आते. थैंक यू. तो
it was a great initiative. और जैसे ही मैंने सुना कि there is something that is going on, so I just drove from Delhi and मतलब I can't stop myself to come over here. So I'm very thankful to everyone, especially all the organizers, Nirima ma'am, Patel sir and all. Everybody, I'm very much thankful. और please बस एक request है, please keep treating us as a students. Keep correcting us because then only we can grow. We can never be more to us. Thank you. Thank you. I hope you are feeling tonight. So it's actually No, right. The college is having Kavi Sammelan. All the alumni are requested to be Kavi Sammelan and followed by dinner. Thanks, Shivansh. Shanti Patel, I request you to kindly come. Namaste everyone. I'm Shanti Patel from 2007 to 11 electrical batch. I was asked to share my story, but I think I'm a good listener. I'm not a good speaker, but still, sometimes what I think, my mind is our own, or it is programmed by society to follow some norms, and I find it's yes. Human being is a most programmable machine, and जो ये यहाँ पे कॉलेज पे आना मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट से कहीं ज़्यादा ये था कि मैंने सोचना सीखा, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखा, क्योंकि वेरी जब बिगिनिंग में मैं आया था तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल एक जंगली लड़का कह सकते हो, जिसे एक सेंस नहीं है कि किस तरह से पहनना है, किस तरह से बोलना है, क्या सोचना है। और जैसे पेरेंट्स का डिमांड होता है कि इंजीनियरिंग करके जॉब करना है, बट आई मस्ट टेल यू कि 4th ईयर होते होते मैं वेरी मॉडरेट फैमिली से हूँ और मैं यहाँ आया था कि चलो बीटेक करके जॉब कर लूँगा, लेकिन आफ्टर 4th ईयर व्हाट आई फाइंड, एक हाथ में मेरे पास CIA का जॉब है और एक तरफ मुझे IIT में पढ़ने का मौका है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले और पढ़ाई करूँ, मुझे और कुछ सोचूं और कुछ जानूं, और मैंने वो चॉइस मैंने CIA छोड़ के और IIT में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो ह्यूमन है वो मोस्ट प्रोबेबल मशीन है, तो सबसे पहले हम उस स्टेज पे जाते हैं जब हम लीस्ट प्रोग्राम होते हैं, वो बचपन होता है, इसलिए बचपन की सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे, ठीक है। तो उस समय की जो क्यूरियोसिटी है, उस समय की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा सिखाती है। तो मैंने कुछ ऑल्दो आई एम नॉट अ पोएट बट आई हैव रिटन इट विद सम इमोशंस। एक्चुअली देयर इज टू थिंग्स, थॉट एंड इमोशन। थॉट एक समय में वैनिश हो सकता है, लेकिन इमोशन क्या होता है, पूरे बॉडी में कुछ लिक्विड फैल जाता है, जब तक वो बाहर नहीं आया तब तक मतलब वो पूरा नहीं होगा। तो मैंने एक दिन ऐसे ट्राई किया कि व्हाट इज आई यूज्ड टू थिंक ड्यूरिंग दैट चाइल्डहुड, आई मस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड दैट्स व्हाई आई रिटन इट। मैं ढूंढ रहा हूँ उन यादों को, उन सपनों को जो पेड़ के नीचे लिखे चारपाई से देखे गए थे। मैं ढूंढ रहा हूँ उन पात्रों को जो नानी द्वारा गढ़ी गई कहानियों में हुआ करती थी। एक्चुअली जब बचपन में हम कहानी सुनते कि शेर आपके मामा है और ये ऐसा है, तो एकदम बिलीव हो जाता था कि हाँ हाँ एक्चुअली होगा ऐसा करके। आते आते वो बिलीव खत्म हो गया है, जो कि रॉन्ग थिंग है। तो ढूंढ रहा हूँ उन पात्रों को जो नानी द्वारा गढ़ी गई कहानियों में हुआ करती थी। ढूंढ रहा हूँ चांद के उन टुकड़ों को जो महीने के अंत में अपने पूरे आकार में हमें अचंभित कर रहा करते थे। ढूंढ रहा हूँ इंतजार के उन पलों को जो घंटों इसलिए बिता दिए गए थे कि टूटते तारों को अपने सबसे अच्छी ख्वाहिशें बता सकूं। ढूंढ रहा हूँ इंतजार के उन पलों को जो घंटों इसलिए बिता दिए गए थे कि टूटते तारों को अपने सबसे अच्छी ख्वाहिशें बता दूं। कहाँ गए वो अनगिनत सवालों की झरिया। बचपन में खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके लिए, तो कहाँ गए वो अनगिनत सवालों की झरिया जो अपने से बड़ों से पूछे गए थे।
कहाँ गए वो बेताबियां, वो यकीन, वो हैरानियां जो प्रायः हमारे लफ्जों से झांका करती थी? कहाँ गए वो शक्ल जिनसे दोस्ती उनके रंग रूप आकारों से नहीं बल्कि दो टुक प्यारी बातों से हो जाया करती थी? कहाँ गए वो जिद जिनसे कहाँ गए वो जिद जिनमें 10 बार झूले से गिरने के बावजूद 11वें के लिए तरसते थे? कहाँ गए वो जिज्ञासा जिसका आदि न अंत था? कहाँ गए ढूंढते ढूंढते समझदारी के उस मोड़ पे आ गया हूं जहां हर चीज को मापने का एक पैमाना है। उफ, मैं बड़ा हो गया हूं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स बन जाते हैं। तुम ऐसा करोगे तो अच्छे हो, तुम ऐसा करो बुरे हो गए। लेकिन बचपन में ये सब पैरामीटर्स नहीं रहता है। इसलिए ये लास्ट लाइन है, ढूंढते ढूंढते समझदारी के उस मोड़ पे आ गया हूं जहां हर चीज को मापने का एक पैमाना है। उफ, मैं बड़ा हो गया हूं। Actually, I do not hate the I am now a fully grown up man. I just want to keep that curiosity जो हमारे बचपन में हुआ करती थी कि किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए। ओके, अभी मैं डायरेक्टर हूँ एक स्टार्टअप का जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एंड आई एम थैंकफुल टू कोर जिन्होंने हमें परमिशन दिया है कि एक VI इनोवेशन लैब यहाँ पे खोला जाए और हम उसमें क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। और कुछ लाइंस के साथ मैं आपको बताऊँ जो हमने सीखा है। जैसे अभाव एक शिक्षक है, जो भी लैकिंग है उससे सबसे ज़्यादा चीज़ हम सीख सकते हैं। आजकल कई लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखते हैं और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक इंटरव्यू देना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्यों? कि उनके उसमें उनकी गलती नहीं है। क्या हुआ, बचपन से उनको अभाव नहीं मिला, चांदी की चम्मच के साथ वो पैदा हो गया तो उनको अभाव नहीं मिला, इसलिए सीखे नहीं। तो अभाव एक शिक्षक है। लव इट टू स्ट्राइव फॉर द ग्रेटनेस। स्वभाव एक दौलत है। अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब मैं स्टार्टअप डाल रहा था मेरे पास पैसे नहीं थे। जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर हमारे दोस्त मिलके ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज इकट्ठा करके विदाउट एनी पेपर वर्क दे गिवन मी वो एंड स्टार्टेड। सो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो स्वभाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आप मनी। तो स्वभाव एक दौलत है। रेज इट टू मेक योर सेल्फ प्रीशियस। सोच एक ताकत है। बिल्ड इट टू मूव द माउंटेन्स। एंड हुनर एक पहचान है। डेवलप इट टू शाइन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shanti. Now, if any of our current students want to interact with the alumni, can do that. Anyone who want to ask questions? I request Mr. Jiten Pawar for sharing his thoughts with us. Good evening everyone. 2000 जब मैं यहाँ पर आया और आज फिर लगभग मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात करी और मैं तो लगातार रुड़की में ही हूँ। मैं कुछ ही समय के लिए पुणे में रहा और दिल्ली में, लेकिन मैं ज़्यादातर समय रुड़की में हूँ। तो मैंने कई बार कोशिश करी और रघुमोहन जी ने कई बार करा, इंसिस्ट किया। लास्ट टाइम भी आते आते रह जाता, बट इट्स रियली ऑनर फॉर मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हमारे साथ के, मैं भी उन चारों को देख रहा था, संदीप यहाँ पर है, रघुमोहन जी है, और सबसे बड़ी बात जब आप अपने पुराने साथियों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, और अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि कम से कम पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो सुबह और कुछ था, फिर फेसबुक हो गया, अब तो व्हाट्सएप के ग्रुप ऐसे हो गए कि कम से कम लगातार टच में तो हम लोग हैं ही हैं, चाहे कोई कहीं पर भी है। और मुझे आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा भावुक भी हूँ और थोड़ी सी चीज़ें ऐसी याद आती हैं कई बार कि जब 2001 में हमने यहाँ पर एंटर किया तो
सबसे पहले उस समय हमारा कॉलेज बिल्डिंग फेज में था और लगातार धीरे धीरे सब चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही थी, और जो उस समय स्टूडेंट इंटरेक्शंस के प्रोग्राम थे वो धीरे धीरे स्टार्ट किए जा रहे थे। तो सबसे पहले मुझे याद आता है कि हमारे उस समय 2001 में कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एक चला गया था, क्योंकि जब आते हैं तो रैगिंग तो हल्की फुल्की चलती थी। वैसे कॉलेज में हमारे डायरेक्टर सर अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, गोपाल रंजन सर थे उस समय, और वीके सिंह सर अभी चले गए। काफ़ी रैगिंग का तो इतना कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे हेल्दी बनाने के लिए उसके बाद एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जनरेट किया गया था। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इट्स रनिंग और नॉट। वो क्या होता था कि जब नए बच्चे जो आ रहे थे, जूनियर्स आ रहे थे, उन सबको इंटरेक्ट कराया जाता था सीनियर्स के साथ। तो दैट वाज माई वेरी फर्स्ट डे वेयर आई इंटरेक्टेड विद माई सीनियर्स। और ये भी सही बात है कि अभी मेरे से पहले बोल रहे थे कि इंटरव्यू देना, बात करना, ये सब चीज़ें आपको माहौल के हिसाब से आती है। आप सीखते हैं कि जब हम पहली बार इंटरेक्ट किए, जब हमें पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिला, तो हमें धीरे धीरे एजुकेशन दूर हुई। और फिर अभी यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट मुझे लग रहा है शायद थोड़ा चेंज हो गया है इस रूम का। अनुराधा मैम यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे टेक्निकल कमेटी जो हमारे जायन हुआ करता था, उसकी टेक्निकल कमेटी का इंटरव्यू देने भी मैं यहाँ पे आया था एक बार, तो शायद तब मेरे ख्याल से इस साइड पे उसका होता था। अब हाँ, 2 पार्टीशन था। अच्छा हाँ, तो मेरे को रूम यही याद आ रहा है आज भी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कॉलेज अब तो 2018 में हम आ चुके हैं। आई थिंक 99 में स्टार्ट हुआ था, तो पूरा एक लंबा समय हो गया है। और हमारे सबसे खुशी हमें इस बात की होती है कि हमारे जितने साथी हैं सब बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड है। और ये भी बात हम कह सकते हैं कि मैं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो बैच था वो बहुत क्रिएटिव बैच था, और टीचर को शिकायत भी काफ़ी रहती थी, लेकिन मैं उन सबके बिहाफ पे ये कह सकता हूँ कि सब बहुत बढ़िया से वेल सेटल्ड है। और इंडिया में कुछ मेरे जैसे लोग हैं, इंडिया से बाहर ज़्यादातर है मेरी क्लास के, मेरे बैचमेट्स जो है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जाकर सब वो लोग हैं, शायद मुझे ना जानते, टीचर्स को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे हम। और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने जब मेरा यहाँ से, मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेरे जैसे हम तो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा रहे, तो मेरा भी प्लेसमेंट यहाँ से हो ही गया था। तो मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट तो यहाँ पे अब भी अच्छा ही चलता होगा। और दूसरी, मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा कि मैंने पुणे में लास्ट टाइम जब मैं था तो मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, मेरे फादर एक्सपायर हो गए उसे 2008 में। तो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर, और मैंने फिर अपने घर का ही सारा काम धाम संभालने के चक्कर में, और मैं पूरे दिल से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ राजनीति में भी यहाँ पर सक्रिय हूँ। और लास्ट गवर्नमेंट में मेरे को मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला, और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद और वेल विशेष रही तो निश्चित 2022 में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस बारे में लेगा। और बीइंग ए कोरियन, और यहाँ रुड़की में यूँ मैं अपने सभी जितने भी यहाँ पर जूनियर्स हैं या हमारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर सर हैं, हमारे जैन सर हैं हमारे, और अगर किसी भी प्रकार की मैं कभी भी किसी प्रकार से कॉलेज के लिए कुछ कर पाऊंगा तो इट विल बी ऑनर फॉर मी। क्योंकि जब हमारा एनुअल डे होता था, हमें पता, मतलब ऐसा होता था कि बिल्कुल, मैडम आप समझ रही होंगी जो मैं कहने हमारे जूनियर जानता हूँ कि ये सर्कल होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, और जो आपके साथ लॉन्ग लाइफ में जो रहता है वो कॉलेज का सर्कल रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि राहत इंदौरी साहब को बहुत खुश सुनता हूँ और उनको पसंद भी करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ ब्रजमोहन जी का। ब्रजमोहन जी हमारे कॉलेज में भी हमारे यहाँ साथ रहे, वैसे यहाँ पे सीनियर हो गए थे, 12th हमने साथ करी थी। और मैं अब पता नहीं यहाँ पे लोगों को जानकारी है ना, ये भी वैसे कवि है, ये भी
क्योंकि मेरे साथ ये 12th में मेरे साथ पढ़े, तो इन्होंने एक बार, मेरे आज तक याद है, एक बार एक कविता चाय के ऊपर इन्होंने कविता लिखी थी, तो हमें इनका नाम भी उस समय चाय वाला ही पड़ेगा था। चाय वाला आज प्रधानमंत्री, चाय वाला आज जो है प्रधानमंत्री भी बन चुका है, तो इनका भी भविष्य उज्जवल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में फैकल्टीज में मुझे कुछ चेहरे पुराने जो अपने हैं वो तो सब है ही, कमल सर बैठे हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर आप लोगों से मेरी अब यही है कि हमारा कॉलेज का जो फेस्ट हो, कम से कम उसका हल्ला आईआईटी से कम ना हो, कम से कम उसके लिए जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं, फैकल्टी तो हमारी पहले से लगी रहती है और मेहनत भी करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। क्योंकि कल मैं अपनी बिटिया के एनुअल डे में गया था, उसका पहला था जी9 लीटर का ही रुड़की में, तो मैं देख रहा था तो मुझे फिर एकदम से फिर अपने कॉलेज का भी रिकॉल हो रहा था उसी टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी समय शुरुआत हुई थी जब हम लोग थे। और पता नहीं अब चीज़ें चल रही है नहीं चल रही। हमारे टाइम पे तो ऑडियो में एक मूवी भी दिखाई जाती थी संडे में, अब भी चल रही नहीं चल रही है? अब वही चीज़ होगी ना, अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो कुछ चीज़ों को परंपराएं वैसे टूटनी नहीं चाहिए और उसको डेवलप होनी चाहिए। और मेरा आप लोगों से यहाँ पर सिर्फ यही है कि अगर कुछ भी कभी किसी प्रकार से हम लोग कर पाए, और कॉन्टैक्ट में हम सब आपस में है ही एक दूसरे के, बड़ा अच्छा है। और ये संदीप भाई हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे साथ भी रहे और उनके भी चर्चे बड़े वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज मतलब मैं भावुक हो गया। कारण ये है कि मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं कॉलेज से गया तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैं मतलब बड़ा अपने आप को अंदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग मानता था, लेकिन मेरे आज भी याद है कि जब हम लोग जा रहे थे तो पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए थे। तो वो मतलब इस तरह का अटैचमेंट हमारी बॉन्डिंग थी दोस्तों की। तो मैं कई बार यहाँ से आने की कोशिश भी कर रहा था। मैंने मुझको हरिद्वार जाना होगा, आई यूज टू टेक नहर पटरी, तो मैं उधर से जाता था, तो मैं उधर से जाता ही था, क्योंकि पुरानी चीज़ें उससे मुझे रिकॉल होती थी। अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, तो धीरे धीरे 12-13 साल निकल गए, और मैं तो देख रहा था कि अभी पीएमसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन पीएमसी का आपने अस्तित्व यहाँ से खत्म कर दिया। इस बात का इस बात का मुझे अफसोस है कि पीएमसी का आपने अस्तित्व ही खत्म कर दिया, क्योंकि जो चौराहा था वो तो अपनी पहचान थी कॉलेज की, उसको भी यहाँ पे खैर चेंजेस होते रहते हैं, हो सकता है क्योंकि नई जगह कोई डेवलप कर ली गई होगी, लेकिन चीज़ें ऐसी है। और ये ऑडिटोरियम हमारे सामने बना था, एमसीए ब्लॉक उसको बोलते थे, तो अभी प्रज्ञान जी बता रहे थे कि ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से होगा, उस समय एमसीए ब्लॉक उसको बोलते थे। तो चेंजेस होते रहते हैं, और ये तो नई पीढ़ी है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को फिर डेवलप कर लेगी, लेकिन जो चीज़ हम डेवलप करके गए थे वो थोड़ा यहाँ पर उसका अभाव अब दिखाई दे रहा है, पर ठीक है। और आप लोगों का, क्योंकि मैं सबसे पहले हम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा यहाँ पर लेट आया, बाकी आप आपस में इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, आप करेंगे, और भावनाओं में कुछ थोड़ा मैं अगर ज़्यादा कह गया हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। और फिर से मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, sir. I now request Chairman sir to kindly come and share his thoughts and experiences and guide the students and alumni. Sir, please. डॉक्टर प्रोफेसर गुप्ता, जनरल ओपी सोनी, फ्रेंड्स, आज बहुत सुंदर दिन, सब पुराने साथी इकट्ठे हुए हैं। इच्छा तो ये है कि बहुत बड़ी गैदरिंग हो। आज एक इनिशिएटिव है, एंड आई एम श्योर इट विल टेक मच बिगर शेप इन द टाइम्स टू कम। एक बात सत्य है, दोस्त सिर्फ कॉलेज में बनते हैं, उसके बाद में, और वो जनरली चौकी में बॉल के बाहर होते हैं, वो इकोनॉमिक बॉन्ड्स के बाहर होते हैं, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। ऑल ऑफ अस आर ऑलमोस्ट ऑन सेम लेवल।
और ये बहुत चलती रहती है। मुझे भी याद है, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले, मैं अपने गांव गया। There is a gentleman with the name Naresh. We were together in a 10th standard. He served as Chief Secretary Rajasthan government, retired and came back to the town, and he दूर से देखते हैं, अरे जिले कहाँ हो? I was called a जिले, जिले तो and we checked almost for 3-4 hours. I was the chief guest में फंक्शन वो सब हुए। क्योंकि क्या होता है, वो पुरानी चीजें होती है, पुराना बॉन्ड होता है। उसके बाद में पता नहीं कितने लोग जीवन में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या होता है, बट वो सब एक कमर्शियल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो आज आप लोगों का जुड़ाव है, एंड काइंड ऑफ फीलिंग्स आई वाज हियरिंग, एक दूसरे की फीलिंग्स, वो जो जुड़ाव होता है उस जगह से जहाँ पढ़े होते हैं। आई वेंट टू स्कूल जहाँ मैंने हाई स्कूल किया था, उसकी एक ये तक याद था कि यहाँ फला पेड़ हुआ करता था, और इस पेड़ के नीचे आकर के हम लंच का बॉक्स खोला करते थे। वो जो यादगार है, वो जीवन में साथ में। मैं अभी कुछ साल पहले न्यूयॉर्क चला गया, वहाँ किसी तरह से एक स्टूडेंट था, उससे बात हुई, एंड बाई इवनिंग वी ऑर्गेनाइज 20-25 बच्चे एक्सपीरियंस इकट्ठे हो गए। तब ये एहसास हुआ कि कोरियर्स शायद दुनिया में इतने फैले हुए हैं, अगर एक शहर में 20-25 बच्चे 4-6 घंटे के नोटिस में इकट्ठे हो सकते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। और जिस तरह की उनकी फीलिंग्स थी, जिस तरह का एक्सचेंज था, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ब्रॉट समथिंग फॉर मी, एंड इट वाज ऑल द बेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट कुड बी डन टू मेक द होल फंक्शन टू बी मोस्ट मेमोरेबल। अभी हम बहुत सारे इनिशिएटिव, आपने कहा कि सब कुछ करंट नजर आता है, शायद आज की जनरेशन में हो सकता है उतना उत्साह ना रहा हो जो उत्साह हुआ करता था। हम जुड़े रहे हैं, वो कुछ भी कॉलेज में आके करना चाहते हैं। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी आर कमिंग अप, द लैबोरेटरी इज आल्सो ग्रो है। उनके जीवन में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसका कोई देश का बनाना चाहते हैं। आई थिंक कॉलेज विल बी मोर देन हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद देम, and I wish you all very, very good luck. You should do beautifully well in life, and we should be proud of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. I request our chairman, sir, to present memento to our alumni. Sir, please. I'll call the names. Didi, sir, please join, sir. I request all the alumni kindly come one by one. I'm not calling the names. Please come one by one. I request internal alumni also to come.
Thank you, sir. Thank you, sir. At the end, I request Mrs. Nilima Patel for vote of thanks. Good afternoon, everyone. All the dignitaries, friends, and most valuable alumni, it is my privilege to deliver a vote of thanks on this auspicious occasion. I, on my own behalf and behalf of Coer Alumni Association, take this opportunity to thank our Honorable Chairman Sir for extending all his support for this function and giving his valuable time. Thank you, sir. I would like to thank DG Professor S.P. Gupta sir for his continuous guidance and keen interest to make this event a success. Thank you, sir. I also would like to thank our respected DG Co-Resident Major General Professor Dr. O.P. Soni sir, BSN. Your critical observation always help us to make things better. I am also thankful to all these HODs for guidance and support. I am also very much thankful to our Deputy Registrar sir for providing infrastructure support. Allow me to tender my gratitude to each and every one of all alumni for finding time to be with us today. It means a lot as you have made it possible despite of your busy schedule to come here today and make this function a successful one. A very hearty thank and best wishes to all of you. At last but not the least, I am very thankful to Bajman sir, Adesh sir and faculty members and students of our committee who work very hard to make this event success. So keep this relation alive. We hope to rejoin again for the next week. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nilima. Now you all are invited for group photograph outside the building, and after that we'll go for lunch, and after lunch we'll visit the Coer campus. Please come for group photograph.